Hello and welcome to the official launch of my channel, the Budding Entrepreneur Podcast with Pooja Ramka. That's me. So, who is my first guest entrepreneur? So, if you had been following my Instagram, you would have known by now. So, if not, then go and follow the Instagram page. The link is given in the description. That's Instagram. Lot more updates, lot more fun, lot more stories. So, go and follow the page. Link is given in the description. So let me introduce you to my first guest entrepreneur. He's a wedding planner, wedding organizer. He and his event company, Elegant Events, organizes name any requirement for your wedding and elegant events, and the entrepreneur will be there to fulfill your dream. So the forte is wedding planning, but Elegant Events is also into other kinds of event, that is award shows, seminars, corporate events, birthdays, you name it, and they'll have it. So why did I choose him as my first guest entrepreneur, and what all will be packed in this podcast? What from losing parents in a very early age to losing more loved and dear ones, all within very few years, then having a very bad breakup, leading everything into depression, channelizing all that negative energy and negativity towards a sport, that is karate. He is also a karate black belt holder and a karate coach. So, channelizing all his negativity into a sports and then rerouting his entire career to a different and a whole new industry, event industry. I mean, it's a journey in itself, you know. With sheer determination, with sheer confidence, he came out from that dark path, creating a ray of hope for himself. From being a karate black belt holder to playing cricket tournaments to being a part of more than 40 plus weddings, national and international, and being part of so many events, some of the famous events that are very famous in Calcutta, that is Raj Dandiya Utsav, Holi Utsav, United, and lot more. Ensure this podcast to be full of dedication, motivation, inspiring stories. So if you are someone who is new to this event industry or want to start into it, please watch this podcast. The whole idea behind the budding is to create a platform to a lot more entrepreneurs so that a lot more people know about them, to have access to more people. So like, share and subscribe this channel. Share this video to as many people as possible. Let me know if you know some budding entrepreneur whose story needs to be told. Do connect to me and we'll tell their story. So like, share and subscribe, and let me begin the podcast by introducing you founder of Elegant Events, Jainesh Surana. Let's get started. Welcome to my podcast, The Budding Entrepreneur. My first guest, Jainesh Surana from Elegant Events, Talia. So thank you being my first guest. You're welcome. तो सबसे पहले आपके बारे में बात करते हैं, देन एलिगेंट इवेंट्स के बारे में बात करते हैं. Who is Jainesh Surana? Yes, I come from a Marwadi family. मारवाड़ी फैमिली जिसका वेल टू डू बिजनेस है, आज भी है. ओके, बट मेरे साथ लाइफ में कैसा हो गया था कि यार बिजनेस नहीं करना है, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ वेरी स्पोर्ट्स बैकग्राउंड. आई एम माय फर्स्ट डैन ब्लैक बेल्ट इन कराटे, so played different tournaments, and my father was into martial arts, to be in karate. Okay. So he inspired me a lot. मेरे दादाजी अपने कॉलेज जमाने में कुश्ती लड़ते थे आगरा में. Oh, great. I joined karate when I was 8 years old. Class 1 में I was a very skinny guy, and class 2 में मेरे को हो गया चिकन पॉक्स. एंड चिकन पॉक्स ठीक हुआ, एंड चिकन पॉक्स की वजह से पता नहीं क्या हुआ, बट मेरा भूख बहुत ज्यादा खुल गया. स्टार्टेड ईटिंग अ लॉट. तो मैं बढ़ता चला गया, एंड मैं लिटरली छोटा मोटा टेडी बेयर बन गया था. Okay. So, उस दौरान उस टाइम में जैकी चैन का एक्शन मूवीज और अक्षय कुमार भी एकदम एक्शन मूवीज करता था उस टाइम में. 99 आई एम टॉकिंग अबाउट 2000. उसी दौरान हमारे स्कूल में कराटे के फॉर्म्स बट रहे थे फॉर कराटे क्लासेस. तो बोला, मैंने उस दिन स्कूल से घर में आके दिखाया मेरे पापा को कि ऐसा ऐसा है, एंड वो ये तुम करना. ठीक है. घर में थोड़ा ड्रामा हुआ. मम्मी वाज लाइक कि क्या बोलते हैं, हाथ पैर तोड़ लेगा, ये कर लेगा, बिकॉज कराटे लोगों की मेंटालिटी में होता है ना, हाथ पैर तोड़ लेगा ना. तो पहला दिन गया, हालत टाइट हो गया. ठीक है, किसी तरह मैनेज करके निकल गया. बट आई नेवर रियलाइज्ड कि यू नो इट विल बिकम इनटू अ प्रोफेशन. इट वाज गोइंग गुड. आई वाज अ हैप्पी गो लकी गाय. करना कुछ नहीं है, एंड स्कूल जाना है, स्कूल से आना है, कराटे सीखना है, बस ये मेरा जिंदगी था. द टर्निंग पॉइंट, यू कैन से दैट, वो कहते हैं ना लाइफ पूरा चेंज हो जाना, वाज 2007 16 मार्च रात के 2 बजे.
my father got a heart attack when I was in completed. I still remember मैंने क्लास 8 का फाइनल एग्जाम दिया था, बट जिस दिन मेरा एग्जाम खत्म हुआ है उस रात को my father passed away. He got a heart attack. So that since then after that I was like कि नहीं karate, I have to take karate seriously because he was very passionate about the sport. तो ठीक है वो कराटे चलता रहा. उस दौरान मैंने फिर क्रिकेट ज्वाइन कर लिया क्योंकि क्रिकेट मेरा पैशन था. करते करते 1 साल 1.5 साल वो खेला. अंडर 17 क्लब डिविजन्स, अंडर 19 क्लब डिविजन्स खेल चुका था. मतलब इंटर स्टेट टूर्नामेंट्स हो रहे थे क्लब्स के. अंडर 19 क्लब डिविजन्स के मैचेस में आई बिकेम अ मैन ऑफ द मैच. फिर मैंने अपना ब्लैक बेल्ट एग्जाम दिया, बिकम अ ब्लैक बेल्ट. उस दौरान आई व्हाट हैपेंड वाज लाइक 27 मई समझ लो 2008, 1 साल आई मतलब मेरा ऐसा था कि सिलेक्शन क्लास 10 का सिलेक्शन एग्जामिनेशन होता है तो ठीक 1 महीना पहले माय मॉम पास्ड. तो मेरे को तो आज भी याद नहीं है कि मैंने सिलेक्शन एग्जामिनेशन कैसे दिया था. आई हैव नो क्लू अबाउट इट अप टिल नाउ, बट हो गया तो हो गया. फिर क्लास 11 में आया एंड दैट टाइम आई गॉट टू नो दिस कि माय ग्रैंड मॉम, मेरी दादी, वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर. Okay. So class 11 I lost my grandmom. 15 साल का लड़का था. Never knew what to do with my life. पता ही नहीं था क्या करना है जिंदगी में. And मेरी नानी भी का भी एक पास अवे. मेरी दादी and नानी passed away in the same year and because of the same problem, cancer. Okay. So those 3-4 years was Very tough. मतलब it was मतलब लाइफ चेंजिंग भी छोटा ही वर्ड होगा आई गेस. ट्रस्ट नहीं. उस 17-15-16 साल की उम्र में पता ही नहीं था लाइफ में करना क्या है. मेरे को इतना जिद था कि बस करना है. मेरे पास आधार कार्ड, मेरे पास मेरा वोटर आईडी कार्ड नहीं था, बट मैं कराटे क्लासेस करवाता था डिफरेंट स्कूल्स में एंड मैं पैसे कमाता था 17 साल की उम्र से. हमारे फैमिली में देखा जाए तो आप हो और दादाजी हैं, राइट? हाँ, मेरे ग्रैंडफादर है, मेरी आंटी है, शी इज जस्ट लाइक माय मॉम, एंड अंकल है, बुआ जी एंड फूफा जी. So we are 4 there in the family. So this is it, and it's a quite very cute छोटा-सा family है. 4 different people in 4 different sections of society. My uncle generally is into politics. Okay. And my auntie is a teacher in Harvard House playing school near Park Circus. And me, my grandfather is a businessman. He started his business 40 to 45 years back. What's his age now, Father? He's turning 81 right now. 81, and I have seen Dadaji, and he is like, I think आज के मुस्टैंडों को मतलब क्या बोलते हैं ना, मतलब वो शर्मा जाएंगे उनके सामने, because of course अब पता चल रहा है ना कुश्ती पहलवान वाले हैं वो. I tell you what happened recently. अभी मैंने थोड़े दिन पहले दादाजी का मैंने फर्स्ट वैक्सीनेशन करवाया था. तो मेरे को ये सुनने में आ रहा था, कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ कलीग्स हैं जिन्होंने करवाया, तो ही वाज दे वर लाइक यार तबीयत खराब हो जा रहा है, किसी के रैशेस हो रहे हैं. उनको कुछ नहीं हुआ. उनको कुछ हुआ. उन्होंने एक दिन बस आराम किया एंड नेक्स्ट डे ही वाज बैक टू नॉर्मल. फिर कराटे चलता गया. बाकी डिफरेंट स्कूल्स में सिखाया. हाँ, there were something around 5 to 6 schools. Okay. Calcutta Boys, Lakshmipad Singhania Academy, Calcutta Girls High School, APJ School Salt Lake, APJ School Park Street. कितने तरफ से बुलाते थे आपको या लाइक क्या हुआ था, जिस एसोसिएशन से सीखता था वो एसोसिएशन से मेरे स्कूल में सिखाता था. They used to teach in different schools. और मेरे को you got admitted into a graduation college, like just 12 pass and graduation के पहले, like ये उस टाइम का बात है. हाँ, ये उस टाइम का बात है. मैं कराटे एक टाइम ऐसा आ गया था कि मैं ग्रेजुएशन भी कर रहा था, दादाजी का बिजनेस में भी इन्वॉल्व हो चुका था एंड मैं कराटे क्लासेस भी करवा रहा था. तीनों एक साथ चल रहे थे. 2012-13 तक मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि हम एक वेडिंग प्लानर बनेगा. हम इवेंट्स, मेरे लिए इवेंट्स का मतलब यही था उस टाइम में कि इंटर स्कूल कॉलेज कराटे कॉम्पिटिशंस होते हैं, मुझे जाना है, खेलना है, मेडल्स जीतना है, आ जाना है. बस यही मेरा जिंदगी था इवेंट्स के रिगार्डिंग. तो कब वो टाइम था जब तुम्हारा इंक्लाइनेशन हुआ इवेंट्स की तरफ, बिकॉज यू वर टोटली अ कराटे पर्सन. जब मैं भी मिली थी, यू वर टू मच इनटू कराटे दैट टाइम टू, बट इवेंट्स की तब इंक्लाइनेशन आ गया था, बट तब आई थिंक आ रहा था. तो व्हाट वाज दैट मोमेंट कि सडनली कराटे से इवेंट्स एंड यू आर नाउ टोटली पैशनेट अबाउट इवेंट? 2016 जयपुर. ओके. मेरे चाचा का डेस्टिनेशन वेडिंग हुआ था. मतलब उससे पहले मैंने कोई डेस्टिनेशन वेडिंग अटेंड किया था तो जब मैं 6 साल का था.
चूरू राजस्थान, जहाँ से मेरे दादाजी एंड सिस्टर्स बिलोंग करते हैं। वहां पे मैंने एक डेस्टिनेशन वेडिंग अटेंड किया था। उसके बाद मैं 2016 में जयपुर में डेस्टिनेशन वेडिंग अटेंड कर रहा हूँ। एंड उस टाइम मैंने फर्स्ट टाइम ये टर्म सुना था, वेडिंग प्लानिंग। मैं जब गया डेस्टिनेशन वेडिंग में, तो मैं देख रहा हूँ यार, एक आदमी है जो अंगुली पे मतलब इशारा कर करके काम करा रहा है। ये कौन है? जान पहचान, बिकॉज घर का शादी था, एंड घर का शादी वाज लाइक आई नो एवरीबॉडी। ग्रेजुएशन हो गया था? हाँ, कुछ कुछ नहीं हुआ था। उसी दौरान ये जयपुर वाला डेस्टिनेशन वेडिंग खत्म करके आया ना, उस टाइम में आगे या पीछे मैंने ये मूवी देखा था, बैंड बाजा बारात। अरे दिस मूवी, आई वाज गोइंग टू मेंशन दिस मूवी बिकॉज़ इवेंट का बात हो और ये मूवी का नाम ना आए, दिस इज इम्पॉसिबल, बट आई कैन अश्योर यू दिस, पूरे इंडिया में, ठीक है, 90% ऑफ द इवेंट प्लानर्स गॉट बिकॉज़ ऑफ दिस मूवी। I think Band Baja Barat was an ad for event industry. Exactly. मेरा ये मूवी चढ़ा, आई वाज लाइक, मेरे को पता चला यार ये करना है। तो मैं करे कैसे, कोई तो, क्योंकि हमारे लाइन में यू नो दिस बिकॉज तुम पार्ट रह चुका है इस चीज का, कि until and unless you don't have any connection you cannot go into it, unless ही तुम्हारा फैमिली बिजनेस ही हो, ठीक है। और मेरे लिए स्पोर्ट्स टूर्नामेंट के अलावा और कोई इवेंट ही नहीं था। तो ये और वेडिंग प्लानिंग चढ़ गया था मेरे ऊपर। मैं वेडिंग प्लानिंग के लिए घुसा, तो मैं पहले पता किया, रिसर्च किया, पूरा किया, क्या करना है। मैंने दादाजी को फोन किया, दादाजी को बोला मेरे को वेडिंग प्लानर बनना है। मेंबर रात के 9:30 बजे, बुआ जी को मैंने बुलाया, फूफा जी हैं, हम लोग सब डिनर टेबल पे बैठे हुए हैं, एंड आई टोल्ड हिम आई वांट टू बी अ वेडिंग प्लानर। ओके, फर्स्ट क्या होता है, कॉल फर्स्ट क्या होता है वेडिंग प्लानर? तो आई टोल्ड हिम, जितना उस टाइम नॉलेज था, कि एक वेडिंग प्लानर होता है जो पूरा अरेंजमेंट्स एंड ऑल करता है, ये करता है, वो करता है। तो फिर मैं बोला, मैं पता किया, एक इंस्टीट्यूट के बारे में उस टाइम पता चला, नेशनल एकेडमी ऑफ मीडिया यूनिवर्स, जहाँ पे आप भी थे, यू आर सीनियर थे ना, 3 महीने पहले ज्वाइन किया था। Okay, yes, Amresh sir, I hope you are seeing this. I'll come to you for name. Right. इंस्टीट्यूट गया, एंड वहां मेरे को पता चला कि मेरा काउंसलिंग हुआ। तो मैम ने मेरे से पूछा कि तुमको क्यों करना है। मैम को मैंने एक ही बात बोला था 2016 में, कि मैम मैं बनिया का बच्चा हूँ, आई कम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, मैं जॉब तो नहीं करूंगा तो बिजनेस ही करूंगा। लोगों को ये लगता है कि इवेंट्स में आना इज लाइक वेरी इजी एंड यू गेट टू अर्न मनी, विच इज ट्रू, यू गेट टू अर्न मनी, विच इज वेरी ट्रू। पेंडल से बात करो और पेंडल लगवाओ और देखो कि हो रहा है कि नहीं, एंड यू आर गेटिंग गुड कमीशन। ये है धारणा है काफी लोगों की। वेडिंग प्लानर का था कि यार वेडिंग्स में, इवेंट्स में पैसा कमाना इजी है, मैं ये नहीं बोलता नहीं है, बहुत है, बट उसके पहले पूरा दिन रात का मेहनत है। हाँ, ऑफ कोर्स, उसमें बहुत ज्यादा डेडिकेशन है, उसमें बहुत ज्यादा करता है। तो उस टाइम को पता चला कि इवेंट मैनेजमेंट एक इंडस्ट्री है एंड वेडिंग एक पार्ट है। right. There are different types of events like social events, corporate events, private parties, birthdays, anniversaries. So wedding planning is a part of the event, of wedding event management. तो मैं बोला ठीक है, मैं पूरा करूंगा, मैं सिर्फ वेडिंग प्लानिंग में करूंगा, मैं पूरा करूंगा। तो मेरे को 1 साल का कोर्स का पता चला। उस टाइम में इट वाज यू नो द फीस, मिडिल क्लास फैमिली के लिए उस टाइम में वो पैसा बहुत बड़ा अमाउंट था। right. मैंने इंस्टीट्यूट का फीस अपने लाइफ इंश्योरेंस के अगेंस्ट लोन लेके भरा है। Really? यस, ये बात किसी को नहीं पता। लेवल ऑफ पैशन यार, आई मीन इट्स अ बिग थिंग। एक होता है कि नहीं यार मेरे पेरेंट्स के पैसे लग रहे हैं, या फिर ठीक है यू नो ट्राई करते हैं, पैशन लेकर ट्राई करते हैं, बट टेकिंग अ लोन एंड देन अप्लाइंग, तो एक लेवल ऑफ गारंटीड पैशन होना चाहिए, बिकॉज ये कॉन्फिडेंस होता है बहुत। जैसे माई रीजन ऑफ ज्वाइनिंग नेम वॉज बिकॉज आई वॉन्टेड टू फिगर आउट वॉट इज इवेंट मैनेजमेंट, एज यूजुअल बैंड बाजा इफेक्ट, प्लस आई ऑलवेज वॉन्टेड टू मैनेज थिंग्स। तो मैंने बोला कि आई वॉन्ट टू गिव इट अ शॉट। तो सो आई थिंक जितने लोगों से मैंने बोला 80% इवेंट जो भी आते हैं इवेंट इंडस्ट्री में, दे गिव इट अ शॉट, बट हैविंग दिस थिंग कि लोन लेके, इट डिमांड्स अ कॉन्फिडेंस कि नहीं भैया मुझे करना है। मैंने डिसाइड कर लिया था ओनली वन थिंग कि यार मेरे जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, जो भी है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल आर इनटू बिजनेस, जो सेटअप बिजनेस है। एंड मैं हमेशा से कुछ अलग करता था सिंस स्कूल डेज, बिकॉज कराटे इज समथिंग व्हिच इज वेरी ऑफ ट्रैक। राइट। तो मेरे को तो यार कुछ भी हो जाए, अपना स्टैंड अप, अपना एक बेस बना लेना है कि यार आने वाला 5 साल बाद भी अगर बीच में छोड़ दूं, 5 साल बाद भी मैं ऐसे शुरू करूँ ना, तो मेरा बेस बना रहे, बिकॉज फ्यूचर को लेके, बिकॉज जो पास्ट में हुआ था उसके बाद आई वाज वेरी आई हैव टेकन, मतलब मैंने अपना फ्यूचर को बहुत ज्यादा सिक्योर करने के लिए रेडी था।
एंड उस दौरान मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि यार आइदर ये इवेंट्स, आइदर कुछ नहीं। आई डिडंट गिव माय एनीथिंग मैंने कोई ऑप्शन नहीं। किया था। हम्म। हम्म। होता है ना एक उस टाइम में 2000 जब करियर बनाने, अच्छा ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, 2-3 ऑप्शंस क्रिएट कर लेते हैं जो मैं ये नहीं कहता गलत है, सही है, बट मैंने नहीं किया था क्योंकि अगर वो क्या बोलते हैं ऑप्शंस क्रिएट कर लेते ना तो माइंड डाइवर्ट हो जाता। बट एक जैसे इवेंट में तुम शुरू ही कर रहे थे, वो भी सीख रहे थे, और इवन इफ यू रिसर्च इट एंड रिसर्च में आई थिंक इतना तो आइडिया हुआ था कि इट्स अ वेरी वॉलेटाइल बिजनेस, लाइक बहुत रिस्की बिजनेस पता चला, है ये। सीखते सीखते पता चला जब इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया था। पहले हम्म। तो 2 महीने मेरे घर वालों को भी भरोसा नहीं था मेरे ऊपर। हम्म। मेरे घर वालों को बोला जाता था क्या कपड़े उठाने वाला काम करवाता है। द फर्स्ट इवेंट वाज विद ऑन 24 December 2016 पीसी चंद्र गार्डन्स बादशाह। ऐसी चल रहा था लाइफ इंस्टीट्यूट कराटे इवेंट्स। जिस इवेंट में मेरे को जाने बोलता था मैं उस टाइम उस इवेंट में बिना ये भी नहीं पूछता था क्या टाइप है या मेरा जॉनर है कि नहीं, बस मेरे को सीखना था। आज भी मेरे को सिर्फ सीखना है। सो मेरे को सीखना था, मेरे को जो इवेंट में मेरे को भागवत मिलता था मैं भागवत करने चला जाता। मैंने वाओ। भागवत 1 दिसंबर को वाओ। मैं एक शोभित चतुर्वेदी जिसने अभी शादी किया है और Congratulations, like, share and subscribe. यस Thank you, एंड yeah. निखिल निखिल Okay. फिर करते 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 2017 14 फेब मेरे दादाजी का बर्थडे 4 फेब को आता है। बट Okay. मेरे टीम नहीं मिल रहा था तो मैंने 14 फेब को फर्स्ट टाइम ऐसा किया था कि मैंने 8-10 साल पैसे जमा करके रखे थे कि Mm-hmm. 2017 को उनका 75th बर्थडे। Okay. तो 2 महीने की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से जितना सीखा था सीखा। मैंने दादाजी का 75th बर्थडे अपने पूरे फैमिली को बुला के इनवाइट करके एक अच्छे तरीके से पूरा प्लान इवेंट करके वैलेंटाइन थीम के साथ मैंने सेलिब्रेट किया था। अब उसमें भी एक ऐसा चीज आ गया कि यार डेकोर के लिए क्या करें, बलून्स तो ठीक है इवेंट के में भी तो डेकोर का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ही। अब दादाजी का बर्थडे के लिए 75th बर्थडे को किस तरीके से डेकोर किया जाए, तो मैंने उनके 90s 60s 70s के जितने फोटोज थे वो पूरे निकाले, उनको इनलार्ज कराया एंड पूरे हॉल में बड़ा बड़ा फ्रेम करके पूरा लगा दिया। Wow. इट वाज लाइक Nice. एग्जीबिशन ऑफ हिज एंटायर लाइफ। उस टाइम 2 महीने हुए थे मेरे को इंस्टीट्यूट में ज्वाइन हुए, ठीक है। Wow. मेरे को उस टाइम में थोड़ा बहुत जो नॉलेज था मैंने कर दिया था। तो उस टाइम फिर मेरे दादाजी को लगा कि हाँ ये कर लेगा। धीरे 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 1-2 इवेंट्स बाहर से भी मैं करने लगा। तो मैंने अपना फर्स्ट डेस्टिनेशन वेडिंग डिड इन विशाखापट्टनम। Oh. हाँ वो मेरा फर्स्ट था। मेरा काम ये था कि मैं एयरपोर्ट में गेस्ट को रिसीव कर रहा था, मैनेजिंग Remember. समथिंग अराउंड 50 to 60 इनोवास, Wow. समथिंग अराउंड 300 to 400 गेस्ट। Let's talk about this portion जो मुझे लगता है किसी भी इंडस्ट्री का चीज होता है टू बिगिन फ्रॉम द बिगनिंग, ठीक है। कोई भी इवेंट कोई भी इंडस्ट्री में जाएगा, दिल भी लाइक नहीं मुझे तो मैनेज करना है, मुझे वो वॉकी टॉकी चाहिए या मुझे वो चाहिए, डू दैट एंड स्टिल आई नो पीपल, ये जो रिसीव वाला पार्ट होता है कि यार गेस्ट को रिसीव करना इवेंट, बट ये कितना इंपॉर्टेंट है ये चीज कि लिसनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है, इट मेक्स यू understand how you can make relations with the guest, not only the wedding guest but not only the main couple and their family, it's the other people who are going to attend the wedding. एंड It यू आर द helps फर्स्ट एंड दोस पीपल आर द फर्स्ट वन जो गेस्ट मिलेंगे इवन बिफोर द रिश्तेदार। तो हमारी exactly. इवेंट का कहीं ना I कहीं फेस है। can this, I can assure you this on this thing कि अगर आपके गेस्ट आपके साथ, अगर आपने इनिशियल में जैसे वो अराइव हो रहे हैं, the first person who's going to get interacted is you, the person who's going to receive them at the end of these things. करेक्ट। And अगर उनको अच्छे से ग्रीट करते हो तो you don't only make a relation for only for that event, you can make a relation for 3-4 event for 10 years. I have some guests on my phone जो मेरे इवेंट्स, जो ये तब के गेस्ट है जब मैं आइदर फ्रीलांसिंग कर रहा था या मैं इंस्टीट्यूट में था, बट आज भी वो मेरे लाइक मेरे इसमें है। दे विश मी ऑन एंड दे अप्रिशिएट कि जनेश इट्स गुड टू सी यू दैट यू स्टार्टेड योर ओन कंपनी। जब बात 17-18 के गेस्ट, जब मेरे को कोई नहीं जानता था, वो गेस्ट आज भी मेरे साथ है। वाओ। सो इट इज नॉट ओनली सी वॉकी टॉकी में करना एंड ये करना, हाँ ठीक है सबको अच्छा लगता है ये करता है, बट अंटिल एंड अनलेस आपको पता ही नहीं तो मैनेज क्या करोगे कि वो जो गेस्ट वहां पे आप लेने जा रहे हो, व्हेन यू डोंट नो कि व्हाट हैपेंस देयर, तो आप वॉकी टॉकी के पहले वो ना पोजीशन में जब आप पहुंचोगे तो आप क्या मैनेज करोगे व्हेन यू डोंट हैव द एक्सपीरियंस ओनली, राइट। मैंने प्लेकार्ड्स लेके भी खड़ा रहा है एयरपोर्ट के सामने गेस्ट को रिसीव करने के लिए। रेलवे कोलकाता के हावड़ा स्टेशन और शियालदह स्टेशन में भागा भी है गेस्ट को रिसीव करने के लिए। ट्रेन से लगेजेस भी उतारे हैं। आई मीन हॉस्पिटैलिटी मैंने हर कुछ किया है, हर कुछ किया है। तो वही कोई भी अगर इवेंट में
इंडस्ट्री में है या स्टार्ट कर रहे हैं, इफ यू आर गोइंग थ्रू दिस और यू आर जस्ट डूइंग दिस, देयर इज नो हार्म बिकॉज यू आर द फेस ऑफ दैट इवेंट कंपनी एंड योरसेल्फ। बिकॉज वो गए सबसे पहले आपसे बात कर रहा है, आपकी ओके आपके थ्रू वो इवेंट कंपनी को बाद में होटल या रिजॉर्ट पहुंचेंगे, बाद में सबसे बात करेंगे। यू आर द फेस एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कोई काम छोटा नहीं होता है। मेरे को मेरे सीनियर ने एक बहुत अच्छा बात बोला था, काम ऐसे करो समझ के करो कि वो तुम्हारा खुद का इवेंट। वाओ राइट। आई थिंक 80% पीपल कम विद दिस थॉट कि आई विल हैव माय ओन कंपनी। यू नो, कोई नहीं सोच के आता कि मैं इस बड़ी कंपनी में, ये जरूर सोचेंगे कि मैं इस बड़ी कंपनी के साथ जुड़ना चाहता हूँ या फिर मैं इनसे सीखना चाहता हूँ, बट एंड ऑफ द डे मुझे अपनी कंपनी खोलनी है। आई थिंक विद दिस माइंडसेट पीपल कम। एग्जैक्टली, क्योंकि मेरा 40 वेडिंग है, मैं सोच के आया था कि इवेंट्स में घुसूंगा। ऐसा नहीं है कि और कोई इवेंट्स करना आता नहीं है, आता तो सभी है, लेकिन अगर एक बोलते ना एक इंसान का एक 40 हो जाता है, एक इंसान का एक स्पेशलिटी हो जाता है, तो मेरे से वेडिंग्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो मैं वेडिंग्स की प्रोडक्शन का क्लासेस लेने लग गया था उसी इंस्टीट्यूट से जहाँ से मैं पढ़ के निकला था। और ये ज्यादा खुशी वाला बात होता है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि एक उनमें से कोई बात कर रहा है, वहीं से निकल के आया है, फ्यूचर दिख रहा है। इवेंट्स कर रहा था, बट आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज इन कोलकाता. I really adore them. I really respect them because it is because those people I learned about events. Practical. Social event करना किसको कहते हैं, मैंने उन लोगों से सीखा है। 3 महीने का मेरा इंटर्नशिप, ठीक है, दिन रात एक कर दिया था, ठीक है, बहुत गाली खाया है, बहुत चप्पल खाया है। लिटरली एक टाइम ऐसा आया था कि हमने खाना पीना सब ऑफिस में करना शुरू कर दिया था, घर आता था खाली कपड़ा चेंज करने के लिए। That means working from 10:30 in the morning till 10:30 in the night. ऐसा चल रहा था हमारा। ठीक है, वो इंटर्नशिप अच्छा गया मेरा, एंड उसके बाद मेरे को फिर उसके बाद मेरे को डिफरेंट कंपनी से बुलाने लगे, इंस्टीट्यूट से, कि इसको भेज दो। तो मैंने एक कंपनी के लिए कम से कम 8-10 वेडिंग्स बैक टू बैक कर लिए थे। प्रोडक्शन संभालता था, पूरा वेडिंग का प्रोडक्शन संभालना, बारात कोऑर्डिनेशन करना, उनके अरेंजमेंट्स करवाना, वो सब प्रॉपर करता था। तो उससे क्या हुआ ना, मेरे को ये समझ में आ गया कि पूरा वेडिंग को एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है। कहते हैं ना, आदमी को एक इंटर्नशिप मिल जाए बहुत बड़ा बात हो जाता है। मुझे दोबारा इंटर्नशिप मिला 1 मंथ का सेम कंपनी में। मेरे को सर ने इंस्टीट्यूट से फोन किया कि देयर इज एन वैकेंसी फ्रॉम अ कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी, दैट द ओनली कंपनी, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज इन कोलकाता जो इंडिया में इवेंट्स ही नहीं करती। ओके। बट मैंने 7 डेस्टिनेशन वेडिंग्स की सिर्फ बैंकॉक में। कहते हैं ना, अब लोग कहते हैं कि ड्रीम्स फुलफिल नहीं होते, इवेंट्स की वजह से मेरे ड्रीम्स फुलफिल हुए। लाइक हाउ? इवेंट्स में आने से पहले मैं कभी प्लेन में नहीं बैठा था। ओके। Never said no for any opportunity No. related to karate or events, कोई भी आया हो। मेरे को अपना अभी तक काउंट याद है, मैंने कम से कम 30 से 32 इवेंट्स सिर्फ इंस्टीट्यूट में रहते रहते। I think within what 1 year I guess. 1 1 year. नहीं, 1.5 year हो गया था मेरे को एक्चुअली। हो ही जाता है बिकॉज इतने इवेंट्स, इतने मैचेस आते हैं, और एक बार क्या होता है ना, आप घुस गए किसी चीज में तो एक लूप बन जाता है कनेक्शंस का, इनके थ्रू इनके। तो हाउ इम्पोर्टेंट इज कनेक्शन इन इवेंट इंडस्ट्री? लाइक आप जाते हो, जैसे मतलब हम सुन के हम पक गए थे व्हेन आई स्टार्टेड, एंड मी बीइंग एन इंट्रोवर्ट, ये सबसे टफेस्ट पार्ट था, व्हिच इज आई थिंक 80% ऑफ व्हाट इवेंट इंडस्ट्री इज मेड, कनेक्शंस, नेटवर्क्स। आई मीन हाउ, क्या स्केल या परसेंटेज दोगे तुम नेटवर्किंग को और कनेक्शंस को? एंड व्हाट डज कनेक्शन एंड नेटवर्किंग मीन? लाइक एवरीथिंग। मेरे लिए मेरा आज तक का करियर जैसे भी चला है, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ कनेक्शंस एंड दैट बॉन्ड, दैट फ्रेंडशिप व्हिच आई हैव विद पीपल। बट जितना मैं रख सकता हूँ या जितना मेरे से लोग रखते हैं, इट्स गुड कनेक्शन, इट्स गुड दैट अंडरस्टैंडिंग व्हिच यू हैव इन द इंडस्ट्री विद द म्यूचुअल रिस्पेक्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे को फिर जॉब मिल गया, अच्छा खासा नौकरी मिल गई। पॉइंट वाज कि आई हैड टू स्टे अप टिल ऑलमोस्ट 2 वीक्स। ऐसा हो जाता था कि मैं 2-2 हफ्ते के लिए बैंकॉक रहने चला जाता था। वाओ। इट वाज लाइक पेड हॉलिडे। काम होता था कि छुट्टी होता था, ये बताओ 2 हफ्ते के स्पैन में कितना काम कितना छुट्टी? बिकॉज लोग अभी सिर्फ बैंकॉक से होंगे। ऐसे होता था कि समझ लो बैक टू बैक इवेंट्स हैं, तो जिस दिन पहुंची दूसरे दिन से इवेंट शुरू हो गया। 4 दिन का इवेंट, 4 दिन के इवेंट में उसके बाद समझ लो 3 दिन का छुट्टी या 2 दिन का छुट्टी। ओके। नेक्स्ट इवेंट के लिए 2 दिन पहले से प्रिपरेशन, फिर 4 दिन का इवेंट। तो अब वो जो 2 दिन का छुट्टी मिला, वो 2 दिन तुम्हारा दिन है, तुमको शॉपिंग में पिंस किया है बैंकॉक में, बाप रे बाप। राइट, तो रिवॉर्ड्स भी हैं और बट वो रिवॉर्ड कमाने के लिए ना बहुत मेहनत करना पड़ता है। इट्स लाइक ऐसा नहीं है कि आप 6 महीना या 1 साल दे दो और आपको रिवॉर्ड्स दिखने लग जाएंगे। पहले 1 साल तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। जो भी लोग ये सुनेंगे या देखेंगे जिनको इवेंट मैनेजमेंट परस्यू करना है, मेरा 4-5 साल का जो एक्सपीरियंस छोटा मोटा जो ये बोलता है, पहला 1 साल 1.5 साल तो भूल ही जाओ कि आपको कोई रिवॉर्ड मिलेगा, आपको कोई पहचानेगा। अंटिल एंड अनलेस यू नीड टू बी दैट मच, हिंदी में वो वर्ड होता है जिद्दी। आपको जिद्दी बनना पड़ेगा।
every event is for me. I get nervous still doing something, being a part of more than 40 weddings. नेशनल एंड इंटरनेशनल. हाँ, इंटरनेशनल नेशनल सब मिला के up till now. But मेरे को whether I'm working as a freelancer, whether I'm it's my own event, मेरा अपने खुद के इवेंट का कंपनी का इवेंट हो, I still get nervous before every event. वो 2016 का बच्चा अभी भी अंदर में रहता है यार, कुछ गलत ना हो जाए. So what will you suggest someone जो इवेंट इंडस्ट्री में शुरू करना चाहता है? What are the do's and the don'ts and how should they start? And क्या रियलिटी दिमाग में रख के चलना चाहिए? I think the biggest one, the biggest जो मैं अभी तक समझी हूँ, जो एटलीस्ट तुम्हारी साइड में काम आया है, वो don't say no to any opportunity. I think मेरे को मेरे सीनियर ने एक बात सिखाया था, जो इवेंट जितना ज्यादा इवेंट में जाओगे उतना ज्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा. एंड वी कम फ्रॉम दैट इंडस्ट्री जहाँ पे एक्सपीरियंस मैटर करता है. बहुत ज्यादा पूरा प्रैक्टिकल इंडस्ट्री है ये, पूरा प्रैक्टिकल. Who knew this? कराटे इंस्टीट्यूट से आया हुआ एक लड़का जिसको इवेंट्स का भी नहीं आता, वो उसने इतने सारे वेडिंग्स कर लिए, पार्ट रह चुका है. ठीक है, तो फिर मैंने वो जॉब कंपनी छोड़ दिया. छोड़ने के बाद मैं फ्रीलांसिंग करने लगे. एंड देन मैंने एक इवेंट कंपनी फॉर्म किया पार्टनरशिप में. ये बात है 2018 का. ठीक है, 2018 का किया एंड इट वाज गोइंग गुड. मैं जिसके साथ पार्टनरशिप में था, इट वाज गोइंग वेरी गुड. मतलब छोटे छोटे बंगाल के मतलब अलग अलग शहर में बहुत सारे इवेंट्स किए. डॉक्टर कॉन्फ्रेंस किया था, क्लब इवेंट्स किए थे सिलीगुड़ी में. हर ऑल्टरनेट सैटरडे हमारे क्लब इवेंट होता था सिलीगुड़ी में. तो ऐसे चल रहा था, बट समथिंग हैपेंड, कुछ इश्यूज हुए एंड कंपनी को फिर हमने बंद कर दिया. तो बट मेरे कुछ कमिटमेंट्स थे, एज एन कुछ इवेंट्स के कमिटमेंट्स किए हुए थे एज ए फ्रीलांसर. तो मैंने वो इवेंट्स उस कमिटमेंट्स को पूरे किया एंड आई वाज लाइक कि दैट वाज लाइक अ वेरी नीचे चला गया था कि अब क्या करूं, क्योंकि कंपनी तो बंद हो गया. तो मेरे पास दो ऑप्शन आया था कि मैं मुंबई चला जाता हूँ, वहाँ पे कोई कंपनी में जॉब वॉब कर लूँगा फॉर द टाइम बिंग एंड ठीक है निकल जाएगा. लेकिन फिर अंदर से वो बनिया का कीड़ा काटा हुआ था, क्या धंधा ही करना है. तो फिर मैंने 2019 में एलिगेंट इवेंट्स करके कंपनी स्टार्टअप किया. आई एम वेरी लकी कि मैंने कंपनी स्टार्टअप किया, बिकॉज जिस दिन मैंने कंपनी स्टार्टअप किया था उसके 2 दिन बाद मेरे पास मेरा पहला इवेंट था. दैट वाज एन अवार्ड शो. वाओ. ये वही अवार्ड शो था जिसके लिए 2016 में मैंने एज एन इंटर्न काम किया था. Everything matters. Everything matters. You must have heard the term Gurukul Awards, जो लायंस क्लब कराता है. 2019 का गुरुकुल अवार्ड्स का मैनेजमेंट मैंने करवाया था. वाओ. एंड वो जो उनके जो प्रेसिडेंट है या उनकी जो कमेटी है, उनको एक्चुअली मेरा फेसबुक पे देखा. वो भी कैसे मिले मेरे, वो भी इवेंट मिलने का. मैंने बोला ना कि आप जो जितना मेहनत अपने प्रीवियस इवेंट्स में करते हो, फ्यूचर में आपको उसका रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा. दैट इज फॉर श्योर, मिलना ही मिलना. उनको मेरा फेसबुक प्रोफाइल दिखा था. मैं इवेंट्स करता था तो मैं डालता रहता हूँ फेसबुक पे. तो फेसबुक देखा एंड ही कॉल्ड मी अप, जनेश करके गुरुकुल अवार्ड्स है एंड आई वांट यू टू मैनेज द इवेंट. मैं बोला ठीक है सर. एंड दैट वाज द फर्स्ट इवेंट. वो इवेंट खत्म नहीं हुआ कि मेरे बेस्ट फ्रेंड की बहन का शादी आ गया. एंड मैं अपने बेस्ट फ्रेंड, उस फ्रेंड को बोल रहा हूँ जिसको मैं क्लास 8 से जानता हूँ. ओके. वो बहन मतलब मेरी बहन है. तो उसकी शादी हम लोग क्लास 8 से प्लान कर रहे थे. तो वो इवेंट आ गया, वेडिंग का आ गया. तो फिर वो वेडिंग का इवेंट मैंने ले लिया साइमल्टेनियसली दोनों. तो बैक टू बैक मेरे पास इवेंट्स आ गए. तो हमने चैरिटी वाला कुछ किया था जिसमें हमने गरीबों को खाना कपड़े बांटे थे 24 नाइट. ओके. वो किया. फिर जनवरी में हमारे पास एक कुंभलगढ़ का हॉस्पिटैलिटी का एक इवेंट आ गया. तो इवेंट अगर ये तुम पूछी ना व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स फॉर टू बी इनटू इवेंट्स, यू नीड टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड टू फेस एनी चैलेंजेस, लाइक वर्किंग इन अ टेंपरेचर ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस. Okay. And managing people in that. Managing people in that. Working in a temperature of 50 to 55 degrees Celsius, where you have to be at the station to receive the guest. हॉस्पिटैलिटी में क्या होता है, यू नीड टू बी ना यूनिफॉर्म. प्रोडक्शन में तो क्या होता है, आप कुछ एक ज्यादातर ट्रैक पैंट से कुछ पहन के आप काम कर सकते हो. हॉस्पिटैलिटी में आप नहीं कर सकते. यू नीड टू बी इन अ यूनिफॉर्म. तो वो यूनिफॉर्म में रह के उस गर्मी में सबसे बड़ा यू नीड टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड. द मेन थिंग इज दैट until and unless you are not mentally prepared, events is not for you. So how important is to work in different companies or under different people to gain experience for new people, new freelancers हो गए या फिर जो नया स्टार्ट करना चाहते हैं? It is very important if you are going to start up. Like मेरा अभी भी स्टार्टअप है, मैंने 2019 में ही शुरू किया है. 1 year पैंडेमिक का सिचुएशन आ गया. मेरे हिसाब से it is more important because you get to explore the industry a lot. Every event manager, no matter who they are, उनका काम करने का तरीका अलग है. Agreed.
whether they are showing a presentation to the client, whether they are executing a Varmala, or even whether they are deciding any budget or something. If you are that involved as a freelancer in an event where you get to see the budget of the event, so every people have their different ways. Basics are same almost, but the way to conduct is will be different. That's for sure. सो एलिगेंट इवेंट्स की अगर बात करते हैं तो क्या क्या इवेंट्स अब तक कर चुका है एलिगेंट इवेंट्स? Like award show, wedding, ओके, and a hospitality and a mehendi decor. open to all the events, though wedding is the forte, because there are not people who are organizing corporate events. और मेरा inclination corporate events के ऊपर ज़्यादा था when I used to do. मैं उस पर ज्यादा चीज फोकस करना चाहता हूँ जिसके बारे में मेरे को पता है, तो मैं उस चीज को अच्छे से, जिसके Right. चीज के बारे में मेरे को नॉलेज ही नहीं है, वो चीज करने से तो मेरा ही नुकसान है ना फिर. So do you have a team of fixed vendors या contract basis पे है या freelancers है? कैसे तुम्हारा elegant events काम करता है? My company generally does is like basically 2-3 people who are there permanently. Vendors are on project basis. Okay. That different vendors every time for every event. Vendor. बट अलग अलग वेंडर्स हैं, उनके साथ काम होता है. हाँ, अगर आपको एक चीज इवेंट्स में एक चीज और सीखना होता है कि यू नीड टू मेक कॉन्टैक्ट्स स्पेशली विद द वेंडर्स एंड वेरी गुड रिलेशन विद देम, मतलब उनको सरताज बनाना होगा. अगर मतलब समझ लो, अगर आप एक साल भी उनके साथ काम नहीं करो और एक साल बाद भी आप उनको फोन करो, वो आपसे ये पूछे कि भैया आपका हालचाल कैसे. सही बात है. तो आपके टच में रहे. क्लाइंट अगर आपको एक क्लाइंट छूट गया, आपको दूसरा क्लाइंट मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको एक वेंडर छोड़ दिया ना, मैं अपने रिलेशंस को बहुत अच्छा बना के रखता हूँ अपने वेंडर्स के साथ. क्योंकि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स वो भी ला सकते हैं. ये कम ऑन यार, दे हैव सो मेनी कॉन्टैक्ट्स. बहुत ला सकते हैं. ला सकते हैं. इट्स नॉट सी, मेरे पापा जब थे ना, वो हमेशा एक बात कहा करते थे, पैसा गधा भी कमाता है, इंसान अच्छा बनना चाहिए. सही बात है. आई थिंक दोज हु आर स्टार्टिंग न्यू, या फिर जैसे हम हैं, कोई भी है, हम इंडस्ट्री में न्यू होंगे, बट जो ये वेंडर्स हैं या फिर जो ऑलरेडी वो कब से हैं, सो इफ दे नो समवन, अगर आप उनके दिमाग में पहले आ रहे हो, सो यू हैव टू बिल्ड दैट रिलेशन कि भैया बना के चलो, भले काम हो नहीं हो कोई बात नहीं. सो इवन यू हैव टू रिजेक्ट देम समटाइम्स, राइट? ऑफ कोर्स इट इज वेरी दैट मच. ये ऐसा है ना कि इट्स अ गिव एंड टेक पॉलिसी. ठीक है, अगर आप उनके साथ अच्छे से रिलेशन बना के रखोगे ना, तो हो सकता है कि वो आपको थोड़ा आपको एक सेटअप उतारना है, लेकिन वो बजट में थोड़ा सा ऊपर नीचे रहे, वो बजट में भी थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लेंगे यार, बट आपका रिलेशन अच्छा हुआ तो. So let's come to the most important thing right now, pandemic. Oh my God. मतलब मुझे लगता है कि इवेंट इंडस्ट्री बस बूस्ट अप होना, एटलीस्ट इन माय सेंस, बस शुरू हुआ ही था थैंक्स टू बैंड बाजा बारात. आई मीन मतलब आई थिंक द होल इंडस्ट्री शुड जस्ट थैंक बैंड बाजा बारात, क्योंकि इतना बूस्ट अप किया. बट लोग जान रहे थे, इंस्टीट्यूट्स खुल रहे थे, लोग एक्चुअली में बर्थडेज के लिए, वेडिंग्स के लिए, छोटी सी सेमिनार के लिए भी इवेंट इंडस्ट्री वालों को अब ढूंढ रहे थे. तो एज सून आई थिंक इट वाज बूस्टिंग एंड द पैंडेमिक हैपेंड. And then the wedding thing, oh my God, only 50 people. So then it came the sanitization cost कि भैया अब सैनिटाइजर लोग रहेंगे और सारे जो भी जो सर्विस करने वाले हैं वो खुद मास्क रहेंगे, ग्लव्स पहने हुए रहेंगे, लाइक दे हैव टू बी सैनिटाइज्ड एज वेल. मुझे लगता है कॉस्ट बढ़ गया था इस टाइम पे, और प्रॉफिट तो खैर छोड़ दो, कमाई पे एक दिन कम ही हुआ होगा. So how did you handle this 2 years of pandemic, especially during this year but also last year? And how did you manage, या अगर तुमने कितने इवेंट्स किए हैं पैंडेमिक के दौरान, एंड व्हाट वाज योर सैनिटाइजेशन प्रोसेस, या फ्यूचर में आगे भी सेफ रहना एटलीस्ट ये पूरा साल, सो व्हाट इज योर प्लान एंड व्हाट डिड यू डू? See, first thing is first, I would say this, that 17 years of 18 years of karate helped me to figure out this pandemic physically, and until and unless you are not physically fit, हाँ मैं ये नहीं बोलता कि आपको एकदम दुबला होना है या कुछ होना, आप फिट रहो, एक्सरसाइज करो, बट अंटिल एंड अनलेस अभी तो ऐसा पैंडेमिक का एक ऐसा सिनेरियो आ गया था कि जिसमें कोई किसी को भी कोरोना हो XYZ. रहा बात हाउ आई केप माई सेल्फ दिस इन दिस ईयर, पहला 2 हफ्ता तो बहुत अच्छा था, बिकॉज उससे पहले मैंने बहुत इवेंट्स कर लिए थे बैक टू बैक. मेरा 6-7 इवेंट्स हो चुका था लॉकडाउन होने से पहले. राइट, वही पूछो. बैक टू बैक मेरा इवेंट्स चल रहा था. क्योंकि 2 हफ्ता का ही बोला गया था, कि ठीक है 2 हफ्ता ही तो है, आराम से चिल मारेंगे घर पे. सही बात है. ये 2 हफ्ता 2 महीना बन गया ना, तो पहला 2 हफ्ता तो ठीक है निकल गया, फिर उसके बाद थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन आने लग गया, क्या करूं, कुछ तो करने को चाहिए आदमी को, वरना करेगा क्या. हम जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, हम तो घर पे बैठते ही नहीं है यार. हम तो हमेशा ही भागते रहते हो. अब भागते हुए किसी को अचानक से घर पे बैठा दो तो किसी को भी एक बार के लिए गुस्सा तो आएगा ही आएगा. I started researching about things.
इंडस्ट्री में नया क्या चल रहा है, ट्रेंड्स क्या है, व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ इवेंट मैनेजमेंट आफ्टर दिस पैंडेमिक। तो मैं इंटरनेट में आर्टिकल्स पढ़ने लग गया था। सेल्फ डेवलपमेंट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैंने अपने ऊपर फोकस किया था। मेरे को बुक्स का पढ़ने का शौक नहीं था। आज के टाइम में मैं एक महीने में मैं 2 बुक पढ़ जाता हूँ। तो मेरे को मैंने वो सब आदत डाले अपने अंदर, बिकॉज थिंग इज दिस, until and unless you don't keep yourself upgraded, your business won't get upgraded. That is the most, it is not related to only events, it is related to every industry where you work. तो क्लिक हुआ कि you cannot only rely on events, you cannot rely only one source of income, you need to have multiple source of income, because आने वाले टाइम क्या होगा किसी को नहीं पता। आज के टाइम में मेरे को अगर कोई वेडिंग के लिए बुलाता है तो मैं वेडिंग्स के लिए मेरा वन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में मेरे पास मेरे मोबाइल में सब कुछ है। मैं एक कांटेक्ट में सब कुछ करा सकता हूँ। बस एक कांटेक्ट्स बनाने के लिए मुझे 6-7 साल मेहनत करना पड़ा, 2016 से लेकर 2019-20 तक। और आगे जब खोलने के बाद तो समझ लो इट्स अ न्यू बिगिनिंग अगेन टू डू एवरीथिंग। एग्जैक्टली। तो मैंने फिर उसके बाद उसको बेस बना लिया, एंड उस बेस बनाने के बाद लाइक कि हाँ ठीक है, क्योंकि हमें पता है ये इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री, जब तक कि कोरोना पूरा खत्म नहीं होता है और जब तक कि पूरा चला नहीं जाता, द वे इट वाज हैपनिंग इन 2019, इट वोंट हैपन दैट वे, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल गेट हैपन। ठीक है, बट क्योंकि अगर तुम नोटिस करोगी 2020 में जब कोरोना कम हो गया था, नवंबर दिसंबर के टाइम में कितनी शादियां हुई। पर मुझे अच्छा लगा देख के, इवन ड्यूरिंग पैंडेमिक, इवन फॉर द होम वेडिंग्स पीपल डिड हायर इवेंट मैनेजर्स, दे डिड कांटेक्ट। हाँ हाँ, सिर्फ वेंडर्स को जा रहे हैं, वो इवेंट मैनेजर को ही हायर कर रहे हैं। सो एग्जैक्टली, सी इट इज वन, मैं ये नहीं कहता हर एक इवेंट कंपनी को जॉब बिजनेस मिला होगा, बट फिर भी मैं 6 वेडिंग्स का पार्ट एज अ फ्रीलांसर। अब मैं ये अभी 6 वेडिंग्स जो मेरे को मिला, ये तभी मिला जब वो पास्ट में जो उतना मेहनत किया है ना, उसका रिजल्ट मिला। तो डू यू थिंक कि कॉस्ट बढ़ रहा है ड्यू टू दिस सैनिटाइजिंग थिंग एंड ऑल? एक्चुअली बढ़ रहे हैं, हर एक चीज के कॉस्ट बढ़ रहे हैं। नॉट ओनली बड़े बड़े चीज, फ्लावर्स, डेकोरेशन पे जो सामान यूज होता है, इवन फॉर द फर्स्ट लाइट्स, धीरे धीरे चीज के कॉस्ट बढ़ रहे हैं। द कॉस्ट ऑफ इवेंट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। आज के टाइम में डीजल और पेट्रोल का भी तो दाम बढ़ गया। इसका इम्पैक्ट कैसे क्रिएट करता है मैं ये बताता हूँ। संगीत में जनरेटर्स यूज होते हैं जिसमें डीजल लगता है, 4 जनरेटर आता है अगर बड़ा वैसा सेट हुआ तो। अच्छा, संगीत की बात करते हैं हम। डीजल का दाम बढ़ेगा तो जनरेटर का भी तो दाम बढ़ जाएगा। सो मेनी सामान आ रहा है ट्रक पे, इतना सारा, मिनी वैन, कॉस्ट केवल सबसे ज्यादा बढ़ गया, ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा बढ़ गया। बिकॉज पहले तो क्या था ना कि पहले हो जाता था, आज के टाइम में पूरा बजट बना के हम लोग को एक जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो कम रखना पड़ा। हाँ, जो लोग नए अभी इवेंट्स में हैं, मेरे को तो यही लगता है अभी फॉर द टाइम बिंग उनको ऐसे ही करना चाहिए। यू कैन वर्क एज अ फ्रीलांसर, दैट्स द वे आई एम डूइंग। आई हैव केप्ट दिस डोर ओपन एंड आई विल कीप दिस ओपन माय एंटायर लाइफ, फ्रीलांसिंग। Are you open to hire other freelancers? People can connect you. या मेरे इवेंट्स में मैंने जो वेडिंग्स किए हैं उसमें मैंने फ्रीलांसर्स भी हायर किया है। तो लर्निंग पार्ट में कोई आते तो मोर देन वेलकम, सीखो, आओ सीखो, मैं सिखाऊंगा खुद, मैं सिखाता हूँ। तो मेरे लिए यार कि मेरी वजह से कोई 1% भी मेरे को यार 1% आता है इवेंट्स का, अगर मेरे को 1% से किसी भी मेरे से कोई सीख लेता है ना और वो अपनी लाइफ में कुछ कर लेगा ना, आई एम मोर देन हैप्पी विद दिस। ये सब फिजिकल चीजों की बात हो गई। अगर हम लोग टेक्नोलॉजी का बात करें तो कितना टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है इवेंट इंडस्ट्री में, या फिर कितना अडेप्ट करेगा इंडस्ट्री? लाइक देयर आर मेनी एप्स टुडे टू मैनेज थिंग्स, सो डू यू यूज एनी और व्हाट डू यू थिंक क्या होता है? I think people are getting, especially the couples are getting smarter these days because of apps, and I don't know how other people take it, but for me it is very beneficial. At least the couple knows what they want in their wedding. पहले क्या होता था ना, जब मैंने भी जब करते थे तो ये होता था, हाँ अपना ऑप्शंस दिखाइए, क्या करना है। आज क्या कपल्स को पता है कि उनको क्या चाहिए, ज्यादा पता है। पहले भी पता था लेकिन अब ज्यादा पता है, थैंक्स टू दीज एप्स। मुझे लगा क्रिएटिविटी थोड़ा मार खा गया, बिकॉज कपल्स और पीपल वांट टू जस्ट, अच्छा मैंने ये देखा, मुझे अच्छा लगा, मुझे मेरे वेडिंग में भी यही चाहिए। सो बिल्कुल नहीं, इट द वे हाउ द इवेंट मैनेजर इज गोइंग टू एक्सप्लेन इट। तुमको जानकारी दे सकते हैं, एप्स तुम्हारा इवेंट्स नहीं करा सकते। उसके लिए इवेंट मैनेजर की जरूरत पड़ेगा तुमको। These technologies can be helpful because people get to we have those people who know what they want in the wedding, whether it's a bridal entry or a groom entry, or for instance a special entry for haldi or sangeet, or a special type of a theme for a sangeet. राइट, For example, हल्दी के लिए मेरे को राजस्थानी थीम चाहिए। अब राजस्थानी थीम में किस तरीके का डेकोर डिजाइन होगा, किस तरीके का
इंस्टॉलेशन बैठेगा, टेबल टॉप्स क्या होंगे, कपल सिटिंग क्या होगा, फूल का डेकोरेशन क्या होगा, एंट्री गेट कैसा होगा, पाथवे कैसा होगा, ठीक है, कपल का एंट्री क्या होगा, एंटरटेनमेंट पार्ट क्या होगा, गेस्ट के लिए गिफ्ट्स क्या होंगे, वो सब के लिए एक इवेंट मैनेजर आता है। एक इवेंट मैनेजर प्लान करेगा आपका वो पूरा शादी। दैट्स वे इट इज बेनिफिशियल। अब तो वो भी आ गया है कि वर्चुअल वेडिंग, बट मैंने किसी से सुना था, मैं कहीं आर्टिकल पढ़ रहा था ये चीज को लेके कि वर्चुअल वेडिंग्स आर ठीक है अभी फॉर द टाइम बिंग, ठीक है, बट ये ज्यादा दिन तक होगा नहीं। वेडिंग्स इज ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट, कम ऑन, वेदर वेडिंग्स इज ऑल मेमोरी। टुगेदर। वो चाचा जी फूफा जी के वो एक फूफा जी के साथ बैठ के चाय के समय में बात कर रहे हैं बिजनेस के बारे में, दैट इज वेडिंग। अब ये ठीक है फॉर द टाइम बिंग, अभी चल रहा है क्योंकि लोगों को करना है। सो शादियां कैंसिल होना इज इम्पॉसिबल। तो आई थिंक बैंड बाजा बारात का ये लाइन भी एकदम परफेक्ट बैठता है कि मतलब इंडस्ट्री बंद हो जाए बट शादियां नहीं रुकेंगी। शादी होंगी तब तक होता रहेगा बिजनेस मेरा। मैं कुछ ऐसे भी इवेंट कंपनीज है जो नए नए उठे हैं एंड मेरे से उन्होंने कुछ कर लिया, विच इज ओके। सबका अपना मैं एक चीज तो बड़ा इंपॉर्टेंटली बोल सकता हूँ तुम्हारे थ्रू जो भी ये देखेंगे जो वांट्स टू स्टार्ट अप विद देयर बिजनेस इन इवेंट मैनेजमेंट स्पेशली वेडिंग प्लानिंग, अपना जर्नी को कभी किसी के साथ कंपेयर मत करना। जिस दौर में अभी जो लोग स्टार्टअप कर रहे हैं वो दौर है जहाँ पे हम बहुत इजीली कंपेयर करते हैं एक दूसरे को, यार ये इतना इतना वेडिंग्स कर रहा है हम क्यों नहीं कर। मेरे साथ भी होता है, कभी कभी मेरे साथ भी होता है, आई वोंट डिनाई द फैक्ट, मेरे को भी गुस्सा था यार, मेरे को वेडिंग्स नहीं मिल रहा, मेरे पास अभी काम नहीं है, बट अभी काम नहीं आ रहा है या कब आएगा नेक्स्ट, बट आई कीप माई सेल्फ मोटिवेटेड बिकॉज एवरी डे यू वोंट गेट अ बिजनेस। हर दिन आपको इवेंट्स नहीं मिलेंगे, हर दिन आपके पास बिजनेस नहीं आएगा, और स्टार्टअप है तो आपको ज्यादा मेहनत करना होगा। प्रमोशंस की बात करें अगर तो जितना मैं समझ रही हूँ तुम्हारे पास मेजर जो क्लाइंट्स आ रहे हैं और जितना कॉन्ट्रैक्ट्स यू आर गेटिंग आर थ्रू गुड वर्ड ऑफ माउथ, राइट? गुड वर्ड बिकॉज यू आर इनटू सोशल मीडिया और इनके सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, सो डू चेक आउट। बट यस, आई फॉलो, like, share, subscribe. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। So all the details of Elegant events are given in the description box. So what is your marketing strategy? माय ग्रैंडफादर, Yeah, वर्ड ऑफ grandfather. वर्ड ऑफ माउथ, वर्ड ऑफ माउथ। सी सो मैंने सीखा है, मैंने लास्ट एक साल 1.5 साल में सीखा है, सोशल मीडिया मार्केटिंग इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग। Of course. It is not to give you business. Hmm. It's going to make up like it's a profile for you, a market where people get aware for it. See, for me, social media is only to promote your business so that people get aware about it. Right. लेकिन आपको जितना वर्ड ऑफ माउथ से बिजनेस मिलेगा वो सोशल मीडिया से नहीं मिलेगा। What do you think is the strong point? मतलब जब आपके clients का हो जाता है काम, so what are the few common points या amazing points that they मतलब ये बस नहीं बोल रहे हैं कि अच्छा जेनिस ने बहुत अच्छा काम किया, वो क्या चीज था जो उनको बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा काम कर गया, या they repeatedly say कि ये चीज काम कर हमारे लिए? लास्ट मोमेंट अरेंजमेंट्स। Last moment arrangement. Okay. रिसेंटली मैंने वेडिंग किया था जो मैंने 10, इट वाज एन इंटीमेट वेडिंग, मैनेज करना था, ब्राइड ग्रूम मैनेज करना था, वेरी सिंपल, वेरी सोबर, बट 8 दिन के अंदर वो 8 से 10 दिन के अंदर वो वेडिंग प्लान हो गया। तो वो जो लास्ट मोमेंट अरेंजमेंट्स है ना, इट कम्स ओनली फ्रॉम एक्सपीरियंस। लास्ट मोमेंट में सब रेडी करना, क्योंकि लास्ट मोमेंट एक ऐसा चीज होता है हर कोई पैनिक करता है अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो। Of course, सही बात है। वो इवेंट मैनेजर भी करेगा, कोई भी करेगा, लास्ट मोमेंट में कुछ ऊपर नीचे होने से एक बार पैनिक सिचुएशन आता ही है। बट अब लास्ट मोमेंट में कुछ चीज मिस हो गया, अच्छा उसका ऑल्टरनेटिव क्या है, उसको किस तरीके, अच्छा अगर मेरे पास 1 घंटा है तो वो अगर मैं बता दूं मेरे साथ क्या हुआ था। 2019 में मैं एक वेडिंग कर रहा था, इस्कॉन, जो मेरे बेस्ट फ्रेंड की सिस्टर का वेडिंग था, इस्कॉन हाउस, इस्कॉन मंदिर है ना सरहद बोस रोड की तरफ, जो वहाँ पे वेडिंग कर रहा था। बारात सामने खड़ा है, गेट पे तोरण होने वाला है, वो जो सासू लोग करती है पूजा, बरमाला नहीं आया हुआ था वेन्यू पे, जो लेके आ रहे थे वो टैक्सी में थे, वो कोई दूसरी सीट पे पहुंच गए। So these are not filmy situation things, this actually happens in real life. इन कलकत्ता में एक दिन के अंदर 25 to 30 वेडिंग्स था, और जो लोग लेके आ रहे थे वो क्या हुआ, उन लोग दूसरी जगह में फंस गए। अब मेरे लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये था, दुल्हन खड़ी है, दूल्हा खड़ा है, देख-चार हो रहे हैं, वरमाला है ही नहीं। तो मेरे साथ मेरा टीम मेंबर था, वो मेरे साथ खड़ा था, मैंने उसे खाली एक ही वार्निंग देके रखा था, जैसे ही तुम देखेगा टैक्सी में हम लोग लेके आए हैं, तुम भाग के जा, वरमाला ले जाके सीधा सजा, पहले बाकी सब बात काम पे करने। वो देखा, आई स्वेयर ऑन दिस एंड दिस एक्चुअली हैपेंड। वो कहते हैं ना, रॉकेट के तरह गया, जो लोग लेके आए थे वो गेट से बाहर से निकले भी नहीं, वो खिड़की से घुसा, उन लोग से वरमाला लिया, वापस गया अंदर। सही है, तो बस लोग बोलते हैं कि ऐसा होता है, बट दिस इज द बिहाइंड द सीन थिंग। एक्चुअली में ऐसा होता है। So, जाते जाते व्हाट आर द थिंग्स दैट यू वांट टू से फॉर एलिगेंट इवेंट्स, फॉर न्यू फ्रीलांसर्स, फॉर एनीवन, लाइक व्हाट पार्टिंग वेज? See, you tell me, तुम मेरा पूरा जर्नी, you have been part of my journey, you have
you knew about this journey, अब तो बहुत elaborate तरीके से। तुमको क्या लगता है क्या होना चाहिए? And mind you, you are also into, you have been a part of event industry, so you know, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुमको कोई जानकारी ना हो। I think it's very, I think अभी बेस्ट चीज ये कि काम आ जाए, बस अपना बिजनेस चालू रखो और सेफली रखो, बिकॉज एक बार पैंडेमिक खत्म हो गया और सब ठीक हो गया तो एनीवे पूरा ऊपर जाएगा, क्योंकि इवन एट दिस टाइम पीपल आर हायरिंग इवेंट मैनेजर्स, इट इज वेरी बिग थिंग। काम आ रहा है, काम है, पीपल नीड यू, नीड द इवेंट मैनेजर्स। सो गो आउट, डोंट गो फॉर द प्रॉफिट्स कि यार कमाई नहीं है, कुछ मिलेगा ही नहीं, सब तो वेंडर्स को चला जाएगा। अरे दे ऑल्सो नीड दिस मनी, सो यू हैव द बिजनेस, दैट इज बिजनेस इज कमिंग टू यू। आई थिंक दैट इज ग्रेट। आई थिंक इस सिचुएशन में, लाइक आई से, फॉर लिविंग ऑल्सो एंड फॉर बिजनेस ऑल्सो, कि सर्वाइव कर रहे हैं बहुत बड़ा बात है। सेफ हो, सर्वाइव कर रहे हो, बहुत बड़ा बात है, और कुछ नहीं चाहिए। मेरे को एक चीज बड़ा सिंपल से समझ में आ गया था पैंडेमिक के बाद, पहले जान बचा लो, धंधा बाद में कर लिया जाएगा। ठीक है, हेल्थ बिफोर, अगर आप सेफ रह गए ना, तो क्योंकि ये कितना होगा अभी, अब तो वैक्सीनेशन आ गया है, और पैंडेमिक जब खत्म होगा, जब ये कोरोना वायरस ये पूरा खत्म हो जाएगा, तो शादियां तो करते रहिए। हो सकता है कि आपका जर्नी थोड़ा सा पीछे जाएगा, लेकिन ये टाइम को भी आप यूटिलाइज कर सकते हो अपने तरीके से। सिर्फ फील्ड में उतर के इवेंट्स करना इवेंट्स नहीं होता है। बिजनेस मैनेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ एन इवेंट, मार्केटिंग टेक्निक्स is a part of event, learning new ideas is a part of event, finding new vendors is a part of event, collaborating with the venues is a part of event, collaborating with the artists is a part of event, learning new things to entertain the guest, or making those ideas to entertain the guest in a wedding is a part of event. what I can summarize for your life is कि मतलब you didn't have any option B या plan B in your life, but as an event manager you should always, मतलब you always have a plan B, like एक alternative हमेशा रहता है as an event manager, but in life you didn't, it was like करो, भगवान ने मुझे बहुत स्ट्रांग बनाया है कि मैंने वो फेस कर लिया। Trust me, and I'm very proud that I'm that much strong in life. I think the good thing what happened is कि वो जितने वो frustration था, negative energies थी, तुमने पहले तो कराटे and sports उसमें उसको channelize किया, which does do in much discipline, and then you channelized all your learnings into your passion, that is your events, you know. So the good thing is that you channelized in a good way, so help किया वो चीज। So there are always good things, right? Like this should be your message कि there are always positive time ahead। जो अभी क्योंकि देखो pandemic में I think most people have experienced this कि parents का हो जाना, अपने लव्ड वन का लूज करना, इस पैंडेमिक में बहुत लोग इस चीज के गो थ्रू कर रहे हैं। सो आई थिंक एनी मैसेज टू देम कि फ्यूचर पॉजिटिव, be positive. The things people who have lost their life because of COVID, it's very hard. I know what it feels for a son to see. I remember मैं बहुत इमोशनल हो जाता फादर्स डे के टाइम, because I was very close to my father. ठीक है, so Father's Day is something that I get very emotional. So that is the thing, but I know what goes to a person's mind and emotions when somebody dies, passed away. So be for that thing you need to be strong enough. भगवान कुछ करते हैं तो सोच समझ के लिए ही करते हैं। And when it comes to me facing this pandemic is, मैंने वो चीज़ देखा है जो नहीं देखना चाहिए था। मैं वो झेल सकता हूँ जिसका मुझे अभी भी अंदाजा नहीं है। बी पॉजिटिव, गुड टाइम्स आर अहेड। When it comes to business, हाँ थोड़ा ऑब्वियस सा बात है, मैं भी इंसान हूँ यार, थोड़ा तो ऊपर नीचे मेरे साथ भी होता ही है। इवन आई गेट थोड़ा सा क्या हो रहा है यार, क्यों नहीं हो रहा है, बट इट इज ठीक है फॉर अ स्टार्टअप। इवन इफ यू सर्वाइविंग इन द मार्केट, इवन इफ एटलीस्ट, चलो आई विल से दिस, फॉर अ स्टार्टअप कंपनी, दोस ऑफ पीपल आर इनटू स्टार्टअप्स एंड वांट टू स्टार्ट देयर बिजनेस, इफ 10 ऑफ योर फ्रेंड्स नो दैट यू आर एन इवेंट मैनेजर, तुम्हारा मार्केटिंग हो रहा है। एंड मेरे लिए, मेरे जितने फ्रेंड्स हैं सबको पता है मैं एक इवेंट मैनेजर हूँ, काम करना आता है, इतना पता है, ठीक है। बिकॉज मैं एक चीज में बिलीव करता हूँ, स्पेशली इन टू वेडिंग्स, दैट्स माई बिलीव, कि वेडिंग ना बहुत सेंसिटिव चीज है। तो पूरा फैमिलीज का एक इज्जत तुम्हारे हाथ में है, दायां से बायां हुआ तो पैसा तो ठीक है, दैट इज सेकेंडरी मैटर, वो फैमिली के ऊपर इज्जत भी क्या होगा, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। But you enjoy it, right? I mean, has there been any moment कि even during pandemic या any time या जब तुम struggle कर रहे होगे कि नहीं यार ये मेरे लिए नहीं बना है, या you just enjoyed every portion, even the struggles and obviously the good time, but even the struggles, है ना? That keeps you going. See, failure is a part of life. अगर आप फेल नहीं होगे ना तो सक्सेस मिलने का खुशी नहीं होगा। I never give myself any second thought about it. बहुत लोग बोले, मेरे फैमिली में भी है, मेरे फैमिली में बुआ जी लोग बोलते हैं कुछ और कर लो, कुछ और फील्ड देख लो, अभी जब तक पैंडेमिक चल रहा है ये तो ठीक है, वो करना ही नहीं है ना। नहीं, अगर बिजनेस करना ही है तो मेरे पास बिजनेस पड़ा हुआ है, मैं उसको देख रहा हूँ,
वो चल रहा है, मेरे घर में पैसे आ रहे हैं, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, दैट इज मेरे घर में पैंडेमिक के टाइम में मेरे घर में पैसे आ रहे हैं, मेरी फैमिली सिक्योर्ड है, सेफ है, दैट इज ओके। Right. Hmm. बट इट इज समथिंग आई नेवर गिव माई सेल्फ अ सेकंड ऑप्शन। कल होगा जिसका जिसका नी का बोन डिसलोकेट हुआ हुआ अगर वो कराटे टूर्नामेंट खेलने चला जाएगा। Right. Your knee bone is dislocated. Right. और इतने कराटे इवेंट के मैंने and I remember you were saving up for your surgery, correct? With your karate Yes. income. You said मैं told me. इसीलिए ना हमें थोड़ा सा पागल होना पड़ता है। You have ambition. You have that goal in your mind. See, my goal is very simple, and it is I want to be in the top 10. Whether after 30 years, 40 years doesn't matter to me, but I want to be in the top 10. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मतलब आज के जनरेशन को देखा जाए कि जल्दी 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 सब होना है। बिजनेस स्टार्ट किया तो मुझे अभी प्रॉफिट चाहिए, अगर ये किया तो मुझे अभी रिजल्ट चाहिए, अगर मैं फिटनेस में चाह रही हूँ तो मुझे अभी पतला होना है। तो नो नो दैट इंस्टेंट रिजल्ट्स है कि नहीं, 1-2 साल अगर बिजनेस नहीं चला, नहीं यार दिस इज नॉट फॉर मी, या नहीं हो रहा है, तो एक टाइमलाइन में जबरदस्ती रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, व्हिच आई थिंक एज एन एंटरप्रेन्योर इज नॉट गुड। Entrepreneurship is for those people who never gives up in their life. राइट। It's for me. I rather prefer to fail rather than regretting my entire life. यार एक साल बिजनेस नहीं मिलेगा, ठीक है, दूसरा साल नहीं मिलेगा, ठीक है, तीसरा साल तो मिलेगा, बट अगर मैंने छोड़ दिया तो मेरे को थोड़ी पता होगा कि नेक्स्ट ईयर मेरे को बिजनेस मिलना है कि नहीं। करेक्ट। How did you like this interview thing? Well, this is very good. I never thought this will happen with you. Yes. थैंक्स, थैंक यू सो मच। मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट बहुत फ्रूटफुल बनाने के लिए। क्या हाँ, क्या चीज तुमको इसके बारे में नहीं पता था इसमें? बहुत चीज नहीं पता था बट बहुत चीज पता था। एटलीस्ट मेन चीज मुझे पता था दैट यू आर क्वाइट पैशनेट, एंड मुझे ये पता था कि सही कर रही हूँ तुमको लेके एज फर्स्ट गेस्ट, बिकॉज आई नो देयर आर स्टोरीज, आई नो कि क्या जर्नी तुमको एलिगेंट इवेंट्स तक लेके आया एंड व्हाट मोटिवेटेड यू स्पेशली ड्यूरिंग दिस। एंड आई सेड कि मेरा होल आइडिया बिहाइंड दिस बडिंग ये था कि ऑब्वियसली एंटरप्रेन्योर्स के बारे में लोगों को पहुंचाना, बट व्हाट आई नो इज कि जो पैंडेमिक सर्वाइव कर गया वो सर्वाइव कर जाएगा आगे।